Hello everyone, this is Anam. Welcome back to my channel, The Digital Masterny. Today's topic is nouns and its kinds. In the previous videos, we have already talked about what is a noun and we have already discussed some of its types. Okay, so in this particular video, we will be recapitulating the kinds of the nouns that we have discussed already. Along with that, we will be discussing some new kinds of nouns. Okay, so before that, let's have a look on the lesson objectives for today. आज के लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं. हम आज के लेसन के अंदर विल नो अबाउट नाउन्स. ओके, देन वी विल नो अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन एंड देयर आइडेंटिफिकेशन. सो इट्स जस्ट 2 steps. ओके, so before starting with the today's lesson, I would again like to request to all of you, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to it. You will find the pre-primary education and grammar lessons related videos here. I post the videos every alternate day, so you will be very much benefited from it. I'm learning new things daily and will help you to learn as well. So let's start with today's chapter or lesson. So as I have said, that today's lesson is all about nouns and its different kinds. So the first question is, what are nouns? Nouns exactly होते क्या हैं? ये हम सभी जानते हैं, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं. Nouns are the names of a person, place, animal, feeling or a थिंग. ओके, सो इसको हम अगर और ज़्यादा प्रिसाइज करें, ब्रीफ करें, तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जितनी भी चीज़ों के नाम होते हैं हम उनको नाउन कहते हैं. और ज़्यादा आसान भाषा में कहें तो नामों को नाउन कहते हैं. फिर चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी प्लेस मतलब जगह प्लेस का नाम हो, किसी भी एनिमल का नाम हो, इंसान का नाम हो, फीलिंग का नाम हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी नाउन्स होती हैं. All right, now the second step, kinds of nouns. So in today's video we will discuss the main 7 kinds of noun here. Some of them we have already discussed in the previous videos. I will link those videos down in the in the description box. Do check it out. It will help you understand the lesson properly. So let me tell you what 7 kinds of nouns are we going to discuss in today's lesson. So the first one that we are going to discuss is common nouns. All right. The second one will be proper nouns. The third one that we are going to discuss is collective nouns. Fourth one is abstract nouns. I have already made videos on it. You can check it out. Those are on my channel already, and I will link them in the description box as well. The fifth one is material noun. This one is new. Material noun you have not seen in my videos. It is the first time that I'm going to describe about it. The sixth kind of noun is countable and uncountable. That also we are studying from class 1. So we all are aware of it. So countable और uncountable दोनों अलग अलग kinds होते हैं noun के, लेकिन for this video हम उनको एक ही मानेंगे. ठीक है, countable और uncountable को हम एक कैटेगरी में रखेंगे. जिस तरह हमने इसको डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में, सो हम countable और uncountable को एक साथ रखेंगे. All right. The last one is gender. Okay, gender is also the kind of a noun. So now that you have come to know what kinds of nouns are we going to discuss in this particular video, so you can take a screenshot of it so that you may know in the future that what kinds of nouns are there. So to start with, let's discuss the common nouns firstly.
Yes, so starting with the first kind of noun, that is common noun. Okay, now what a common noun is. A common noun is the general or ordinary name of a person, place, animal, thing or event. Okay, so जो common noun होते हैं वो general नाम होते हैं किसी भी इंसान, जगह, एनिमल, चीज और इवेंट का. ठीक है, जनरल नाम होंगे तो वो कॉमन नाउन कहलाएंगे आपके. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर आप किसी भी डॉक्टर को कह सकते हैं. ऑल राइट, टीचर आप किसी भी टीचर को कह सकते हैं. तो ये कॉमन नाउन है. ऑल राइट, चाहे वो आपके कोई भी डॉक्टर हो, आप उनको डॉक्टर या टीचर कह सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल को कह सकते हैं. लेकिन इफ वी से अपोलो, सो हम अपोलो हॉस्पिटल को ही अपोलो कह सकते हैं. ऑल राइट, हम किसी और हॉस्पिटल को अपोलो नहीं कह सकते. वाई? वो एक पर्टिकुलर नाम है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए, एक स्पेशल नाम है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए. तो वो क्या होगा? वो होगा उस प्रॉपर नाउन. जो पर्टिकुलर नाम होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, और जो कॉमन होते हैं जो हम किसी के भी लिए यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर कॉमन नाउन. ऑल राइट, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द गर्ल हैज अ ब्यूटिफुल कैट. अच्छा देखिए, गर्ल हम किसी भी लड़की को कह सकते हैं. ऑल राइट, लेकिन सीमा हम सिर्फ सीमा को कहेंगे, रिया को सीमा नहीं कह सकते. सो जो ऐसे नाम होते हैं जो हम किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए खास तौर पर स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं वो आपके होते हैं प्रॉपर नाउन्स, और जो आप किसी के लिए भी यूज कर ले वो होते हैं कॉमन नाउन. गर्ल आप किसी को भी कह सकते हैं, कैट आप किसी भी बिल्ली को कह सकते हैं. लेकिन अगर आपने कोई एक बिल्ली एज अ पेट रखी हुई है तो आप उसको पर्टिकुलर नाम भी देते हैं. तो आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल योर कैट्स नेम इज लीजा. ऑल राइट, सो आप अपनी कैट को ही लीजा बुला सकते हैं, बाकी कैट्स को लीजा नहीं बुला सकते. ऑल राइट, सो कैट इज अ कॉमन नाउन एंड लीजा इज अ प्रॉपर नाउन. अगेन, द डॉग इज प्लेइंग इन द पार्क. डॉग जो है वो पार्क में खेल रहा है. अच्छा, मान लीजिए आपने कोई डॉग पाला हुआ है, उसका नाम है फिडो. सो इफ वी से फिडो इज प्लेइंग इन द काउंटी क्लब पार्क. ऑल राइट, सो यहाँ पर ये दोनों नाउन जो है वो कॉमन है. डॉग किसी भी डॉग को कह सकते हैं, पार्क किसी भी पार्क को कह सकते हैं. लेकिन फिडो आपके डॉग को कहेंगे, काउंटी क्लब पार्क उस पार्क को कहेंगे जहां पर फिडो खेल रहा है. सो काउंटी क्लब और फिडो क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है, और डॉग और पार्क कॉमन नाउन है. आई होप नाउ कॉमन नाउन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द सेकेंड थिंग इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मैंने आपको कॉमन नाउन के साथ ही डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, फिर भी एक बार हम उसको दोबारा से देखेंगे. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इवेंट. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ओके, आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा क्लू है ये, जब भी आपको कहीं पर कैपिटल लेटर दिखे विच मीन्स इट इज अ प्रॉपर नाउन. ऑल राइट, सो मैंने आपको बताया किसी भी चीज का पर्टिकुलर स्पेसिफिक और स्पेशल नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था गर्ल, गर्ल आप किसी को भी कह सकते हैं, सोनिया सिर्फ सोनिया को कहेंगे. ऐसे ही मिसेस जॉन सिर्फ मिसेस जॉन को कहेंगे, बाकी वुमेन आप किसी भी वुमेन को कह सकते हैं. नाउ कैनेडा, कैनेडा इज अ प्लेस, कैनेडा इज द नेम ऑफ अ सिटी. सो सिटी आप किसी भी शहर को कह सकते हैं. ऑल राइट, लेकिन कैनेडा हम सिर्फ कैनेडा को ही कहेंगे. हम जो है मुंबई को कैनेडा नहीं कह सकते. सो मुंबई एंड कैनेडा आर द स्पेसिफिक पर्टिकुलर और स्पेशल नेम्स गिवन टू दीज टू सिटीज. सो सिटी इज अ कॉमन नाउन एंड कैनेडा एंड मुंबई इज आर द प्रॉपर नाउन्स. नाउ अगेन लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. रिया कॉल्स हर कैट किटी. हमने पीछे बताया था गर्ल, और गर्ल का नाम यहाँ रिया हो गया, कैट का नाम किटी हो गया. सो दीज बोथ ऑफ देम आर प्रॉपर नाउन्स. नाउ अगेन फिडो इज प्लेइंग इन काउंटी क्लब पार्क. ये हमने ऑलरेडी देख लिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The third thing is collective noun. Okay, so now what collective nouns are? इसकी वीडियो both of these nouns, collective and abstract noun, इन दोनों की एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है अलग से. सो मैं उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. डू चेक दैट आउट ऑल्सो, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड दिस लेसन. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. अच्छा, ऐसी चीजों, इंसानों या फिर एनिमल्स का ग्रुप जो देखने में सिमिलर हो, एक जैसे हो, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन. जैसे कि पर्सन, प्लेयर्स की टीम को, प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं.
तो इसी तरीके से जो सिंगिंग करने वाला ग्रुप होता है, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है, उसको हम कोयर कहते हैं. जो म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है हम उसको बैंड कहते हैं. ऑल राइट. ऐसे ही एनिमल्स के ग्रुप में लायन के ग्रुप को आप क्या कहेंगे? प्राइड कहेंगे. थिंग्स का ग्रुप, चाबियों के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? चाबियों के कीज के ग्रुप को हम कहते हैं बंच. ऑल राइट. फ्लावर्स के ग्रुप को हम कहते हैं बुके. ऑल राइट. सो these tell us that the collection or group of similar things is called a collective noun. Here are some examples: team, troop, herd, choir, brood. All right. Now the second thing, अच्छा मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में आपको छोटे में समझा रही हूँ ये दोनों टॉपिक्स. वाई? बिकॉज इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप उसको देख लीजिएगा. वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ऑल राइट. नाउ अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन. देखिए, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, इन तीनों चीजों के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. अगर दूसरे शब्दों में बात करें, these are the names of things which we cannot see or touch. ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड्स को आप सब देख सकते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंडशिप, ना तो आप फ्रेंडशिप को देख सकते हैं, ना ही आप हाथों से टच कर सकते हैं. यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस दैट और फील दैट. सो द थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर आईज और यू कैन नॉट टच विद योर हैंड्स, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस और फील दैम आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. जैसे कि ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फाइट, फाइट को आप हाथों से नहीं छू सकते. फ्रेंडशिप, adulthood or poverty, all of these are abstract, all of these are the examples of abstract nouns. Now moving forward, the next thing is material nouns. Material nouns क्या होते हैं? ऐसी चीजें, ऐसे substances जिनका इस्तेमाल किसी नई चीज को बनाने के लिए किया जाता है are called material nouns. Again, it is the name of any substance that is used to prepare another thing. अच्छा, ऐसी चीजें जो दूसरी चीज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको मटेरियल, उनके नामों को मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से क्या बनता है? ज्वेलरी बनती है. अच्छा, सिल्क, सिल्क से क्या बनता है? ड्रेसेस बनती हैं. प्लास्टिक से क्या बनता है? प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं. यू नेम इट एंड इट इज देयर. अगर मैं एग्जांपल्स दूंगी तो सुबह भी हो जाएगी, एग्जांपल्स नहीं खत्म होंगे. फॉर एग्जांपल, दिस टेबल, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. नाउ अगेन पेपर, पेपर से बहुत सारी चीजें बनती हैं. बुक्स, नोटबुक्स, बिल बोर्ड, सो मैनी थिंग्स आर देयर. ग्लास, ग्लास से आपकी क्रॉकरी बनती है, मिरर्स बनते हैं, विंडो बनती हैं. ऑल राइट. सो द सब्सटेंसेज दैट आर यूज्ड टू मेक अनदर थिंग्स, देयर नेम्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स. लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स. सिमी लुक्ड एलिगेंट इन अ सिल्क ड्रेस. सिमी जो है वो सिल्क ड्रेस में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी. सिल्क अब यहाँ पर क्या है? मटेरियल नाउन है. क्यों है मटेरियल नाउन? क्योंकि सिल्क से बनती है ड्रेस. ओके. नाउ अगेन, द गोल्ड नेकलेस इज ब्यूटिफुल. गोल्ड नेकलेस जो है वो बहुत ही सुंदर है. गोल्ड से बना नेकलेस, इट इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी. सो गोल्ड इज द मटेरियल नाउन हियर. Now again, countable and uncountable nouns. It is the easiest kind of a noun. ये सभी बच्चों को आता है. अगर नहीं आता है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको आ जाएगा. काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट वी कैन काउंट. काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं. जैसे कि बनाना, बॉटल, पेंसिल, पिलोज, ब्लैंकेट्स, सोफाज, लाइट्स, फैंस, यू नेम इट. जो चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप गिन सकते हैं वो आपके क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते. जैसे कि आपका शुगर, मिल्क, राइस, ऑयल, एयर, वाटर, इंक, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. यानी कि ऐसी चीजें जिनको आप गिन सकते हैं दैट आर काउंटेबल नाउन्स, एंड जिनको आप नहीं गिन सकते दैट आर अनकाउंटेबल नाउन. नाउ अगेन, द लास्ट थिंग, जेंडर. नाउ ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है. जेंडर, अ जेंडर स्पेसिफिक नाउन इज अ नाउन that refers specifically to someone or something male or female. Gender क्या होते हैं जो डिनोट करते हैं if the noun is belonging to a male or female. अच्छा, types of genders. There are 4 types of gender. सबसे पहला होता है आपका masculine gender, masculine or masculine.
ओके, सो ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है मेल्स को. फिर होता है आपका फेमिनाइन जेंडर. It refers to females. The third one is common. The fourth and last one is neuter. So let's talk about them one by one. Firstly, we will talk about the masculine gender. As I've told, it refers to the males. Okay, जैसे कि आपका हो गया boy, king, brother, सर. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसको रेफर कर रहे हैं? मेल कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं. तो ये क्या होते हैं? मस्कुलिन जेंडर. ऐसी चीजें जो मेल्स के बारे में बात करें, बॉयज के बारे में बात करें, उसको कहते हैं मस्कुलिन जेंडर. नाउ फेमिनिन रिफर्स टू द फीमेल्स. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, क्वीन, सिस्टर और मैम. ये होते हैं आपके फेमिनिन जेंडर. अब कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर होते हैं जो आप बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं और गर्ल के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर. डॉक्टर चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप उसको डॉक्टर ही कहेंगे. टीचर चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप उसको टीचर ही कहेंगे. ऑल राइट. सो ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो दोनों जेंडर्स में यूज होती हैं, उनको कहते हैं हम कॉमन जेंडर. अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है आपका द नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूटर genders. For example, chair, table, ring, pen, all of these are neuter gender. Alright students, so this was it for today's class. To recapitulate, today we have learnt common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun, countable noun, uncountable noun and genders. So this was it for today's lesson. I hope you are clear with it. If not, do let me know in the comment box. I will explain it once more. Till then, this is Anam signing off for today. Have a wonderful day ahead. Keep learning, keep exploring.